ایک ایسی لڑکی جسے ساری دنیا پاگل کہتی ہے مگر کوئی نہیں جانتا کہ اس کی خاموشی میں کتنا بڑا راز چھپا ہے۔ ایک ایسی بیٹی جس کے ہنسنے سے محل کانپ اٹھتا ہے اور جس کے غصے سے سب کانپ جاتے ہیں۔ ایک ایسا بادشاہ جو تخت پر بیٹھا ہے مگر دل میں اپنی بیٹی کے لیے ہر لمحہ ڈرتا ہے۔ اور پھر آسمان سے اترنے والی سرخ آندھی، 2 مڑے ہوئے سینگ، آگ اگلتی آنکھیں اور ایک ایسا جادوگر جو محبت کے نام پر خون مانگتا ہے۔ سوچو، اگر تمہیں کہا جائے کہ تمہاری بیٹی کو بچانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، یا تو وہ خود اپنی جان ہتھیلی پر رکھے یا پورا ملک اندھیرے میں ڈوب جائے۔ اور وہ لڑکی جسے سب پاگل کہتے ہیں، وہی لڑکی جب نرگس کا ایک پھول اپنے ہاتھ میں اٹھاتی ہے تو آسمان لڑزنے لگتا ہے۔ یہ کہانی صرف جادو کی نہیں، یہ کہانی ہے غصے کی، حوصلے کی اور اس لمحے کی جب ایک کمزور سمجھی جانے والی لڑکی خود اپنا مقدر بدل دیتی ہے۔ آخر کیوں ایک روشنی آسمان سے اترتی ہے، کیوں وہ بے ہوش ہو جاتی ہے، اور کیسے پاگل کہلانے والی لڑکی چاند مریم بن جاتی ہے۔ اگر تم نے ایک بھی سین مس کیا تو پوری کہانی ادھوری رہ جائے گی۔ آخر تک دیکھو، کیونکہ انجام وہ نہیں جو تم سوچ رہے ہو، کیونکہ اس کہانی کا انجام آپ کی سوچ سے بالکل مختلف ہے۔ اور ہاں، اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو جائے، آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر پسند نہ آئے تو بے شک لائک مت کیجیے گا، کوئی زبردستی نہیں، لیکن اگر کہانی اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ایسی مزید کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو پھر دیر کس بات کی، شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ملکی شام کا بادشاہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس کی کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی، بس ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام مریم تھا۔ مریم عام لڑکیوں جیسی نہیں تھی، وہ کچھ الگ تھی، بہت ہی الگ۔ جب مریم ہنسنے لگتی تو رکھنے کا نام نہ لیتی، کوئی لاکھ سمجھاتا، کوئی 1000 منتیں کرتا، مگر وہ ہنستی ہی چلی جاتی اور پھر اچانک بالکل خاموش ہو جاتی۔ اور جب مریم رونے لگتی تو گھنٹوں روتی رہتی، آنکھوں سے آنسو تھمتے ہی نہ تھے، کوئی تسلی کام نہ آتی۔ پھر جب اسے غصہ آتا تو محل کے ملازموں کی شامت آ جاتی، وہ کوڑا اٹھاتی اور مارتی چلی جاتی، جب تک خود تھک نہ جاتی تب تک رکھتی نہیں تھی۔ اور کبھی کبھی اسے شکار کا جنون سوار ہو جاتا تو وہ کئی مہینے جنگلوں میں گزار دیتی، درندوں کے بیچ، شکار کے پیچھے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آتا جب اس پر فیاضی کا دورہ پڑتا، وہ اپنے نوکروں، کنیزوں اور محل کے سامنے سے گزرنے والے عام لوگوں میں دولت اس طرح بانٹتی کہ دیکھتے ہی دیکھتے فقیر رئیس بن جاتے، بادشاہ۔ مریم کی ان عجیب و غریب عادتوں کی وجہ سے دن بدن پریشان ہوتا جا رہا تھا۔ ملکی شام کے لوگ اسے پاگل کہنے لگے تھے، لوگ مریم کو پاگل مریم کے نام سے پکارتے تھے، حالانکہ اس کا اصل نام چاند رکھا گیا تھا، مگر اس کی حرکات کی وجہ سے اصل نام جیسے لوگوں کو یاد ہی نہ رہا۔ بادشاہ جانتا تھا کہ رایا ایسی مریم کو اپنی ملکہ تسلیم نہیں کرے گی۔ وہ سوچتا تھا، میرے بعد اس ملک کو کون سنبھالے گا؟ اسی فکر میں وہ دن رات گھولا جاتا۔ بادشاہ نے بڑے بڑے حکیم بلائے، مریم کا علاج کروانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر ہر حکیم ایک ہی بات کہتا تھا، مریم نہ پاگل ہے نہ بیمار، بس اللہ نے اس کا ذہن ایسا ہی بنایا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ مایوس ہو چکا تھا۔ ایک رات وہ سوچتے سوچتے سو گیا، اور اسی رات اس نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ خواب میں بادشاہ نے دیکھا ایک آدمی جس کا سر بالکل گنجا تھا اور اس کے سر کے دونوں طرف بیل کی طرح بڑے بڑے مڑے ہوئے سینگ تھے، اس کے 2 بڑے دانت مینا سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ وہ آدمی بادشاہ کے محل کی چھت پر اترا، جیسے ہی اس نے دونوں طرف ہاتھ لہرائے ہر سمت سرخی چھا گئی۔ یوں محسوس ہوا جیسے سرخ رنگ کی آندھی پورے محل کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہو۔ تیز ہوا خوفناک آوازیں، اور اسی آندھی کے اندر سے اچانک ایک تصویر بھری مریم کی تصویر۔ مریم کی آنکھیں ہلکی سی بند تھیں، چہرے پر نقاب تھا، وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اس کے وجود میں گہری مایوسی چھپی ہوئی تھی۔ اچانک خواب کا منظر بدل گیا۔ اب مریم ایک عام سا لباس پہنے کھڑی تھی۔ ایک آدمی نے اس کے دونوں بازو پیچھے سے جکڑ رکھے تھے، اور سامنے بڑی بڑی مونچھوں والا ایک شخص ہاتھ میں کھنجر تھامے مریم کو مارنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ یہ منظر دیکھتے ہی بادشاہ کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی، اس کی آنکھیں کھل گئیں، وہ گھبرا کر بستر پر بیٹھ گیا، چہرہ پسینے سے تر تھا، سنس ٹیز تھی اور آنکھوں میں خوف جمع ہوا تھا۔ اسی لمحے ایک دربان دوڑتا ہوا آیا۔ بادشاہ سلامت، یہ آپ کی چیخ تھی؟ بادشاہ نے کانپتی آواز میں کہا۔ ہاں، ہم نے ایک نہایت برا خواب دیکھا ہے۔ پھر اس نے حکم دیا، جلدی جاؤ، شاہی نجومی کو فوراً بلا کر لاؤ، ہمیں اس خواب کی تعبیر جاننی ہے۔ دربان پلک جھپکتے ہی نکل گیا۔ بادشاہ نے خود کو سنبھالا،
चेहरे पर नकाब लिया और ख्वाबगाह से निकलकर इस कमरे में आ गया जहां वो अपने खास लोगों से मुलाकात करता था। शाही नजूमी के आने तक बादशाह कमरे में बेचैनी से टहलता रहा। कुछ देर बाद शाही नजूमी अंदर दाखिल हुआ। उसने झुककर कहा, हुक्म सरकार, आपने आधी रात को याद फरमाया? बादशाह ने रौबदार अंदाज में कुर्सी पर बैठते हुए कहा, हाँ नजूमी, हमने एक खौफनाक ख्वाब देखा है और उसकी ताबीर जानना चाहते हैं। नजूमी फर्श पर बैठ गया। तफसील से बयान कीजिए। बादशाह सलामत। नजूमी ने अपना बस्ता खोला, एक कापी निकाली और लिखना शुरू कर दिया। वो लिखता रहा 2 पूरे सफ़े सियाह हो गए। फिर उसने कापी बंद की और बस्ता सिमटने लगा। बादशाह ने बेचैनी से पूछा, क्या हुआ नजूमी, तुम कुछ बता क्यों नहीं रहे? नजूमी ने सर झुकाकर कहा, बादशाह सलामत, अगर आप मुझे जान की अमान दें तो मैं हकीकत बताऊं। बादशाह ने फौरन कहा, हम तुम्हें जान की अमान देते हैं। तब नजूमी बोला, बादशाह सलामत, आसमान से उतरने वाला वो बड़े सींगों वाला आदमी कोई और नहीं, वो एक खतरनाक जादूगर है और उसके हाथ हिलाने से जो सरखांधी चली थी वो किसी बहुत बड़े फितने की अलामत है। शाही नजूमी बोला, वो कोई आम इंसान नहीं, वो एक बहुत बड़ा जादूगर है। इसका नाम काशाम जादूगर है। वो निहायत मगरूर और बेहद जालिम है। आपकी सल्तनत पर उसका इतरना और सरख आंधी चलाना इस बात की निशानी है कि वो मरियम से शादी करना चाहता है, मगर मरियम ने इससे इनकार कर दिया है और इसी गुस्से में उसने अपने चीले भेज दिए हैं ताकि मरियम को मार डाला जाए। नजूमी ने सर झुकाकर कहा, बस यही उस ख्वाब की ताबीर है। बादशाह सलामत। यह सुनकर बादशाह ने होंठ चबाते हुए पूछा, क्या कोई ऐसा अमल है जिससे मरियम की जान बचाई जा सके? नजूमी ने आ भरी और बोला, बादशाह सलामत, अगर मरियम शादी पर राजी भी हो जाए तब भी ये शादी मुमकिन नहीं। जादू देवता काशाम जादूगर को उसकी इजाजत कभी नहीं देंगे। वो निहायत गुस्सावर है। वो अपना सारा गुस्सा मरियम पर उतारेगा और आखिरकार उसे मार डालेगा। अगर मरियम इनकार करे तो इसके चेले आकर उसे कत्ल कर देंगे। बादशाह ने गुस्से से कहा, क्या उस सिंगों वाले जादूगर को हलाक नहीं किया जा सकता? नजूमी ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं बादशाह सलामत, वो बादलों में कहीं रहता है, कोई उस तक पहुंच भी नहीं सकता, और अगर कोई उसे मारने की कोशिश करे तो वो उसे पल भर में जलाकर राख कर देगा। बादशाह ने ये सुनकर खामोशी से सर हिला दिया, फिर थके हुए लहजे में कहा, तुम जा सकते हो। शाही नजूमी तेजी से कमरे से निकल गया, मगर बादशाह की परेशानी और बढ़ गई। वो कमरे में बेचैन होकर टहलता रहा। उसके जहन में कोई ऐसी तरकीब नहीं आ रही थी जिससे वो मरियम को इस संगों वाले जादूगर से बचा सके। यूं ही सोचते सोचते रात गुजर गई और सुबह हो गई। सुबह होते ही बादशाह ने उस तबल से अपना शाही घोड़ा मंगवाया। वो घोड़े पर सवार हुआ और तेजी से शहर से निकलकर मगरबी इलाके की तरफ पहाड़ों में जा पहुंचा। ये पहाड़ निहायत वीरान थे। बादशाह ने घोड़े को एक चट्टान से बांधा और खुद पहाड़ पर चढ़ने लगा। काफी ऊपर जाकर वो एक गार के दहाने पर रखा। गार के मना पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा था जो दरवाजा बंद किए हुए था। पत्थर इतना भारी था कि अकेला बादशाह तो क्या 10 आदमी मिलकर भी उसे हिला नहीं सकते थे। बादशाह ने ऊंची आवाज में कहा, मेरे दोस्त बहराम, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। गार के अंदर से एक भारी और लरजती हुई आवाज आई, कौन? बादशाह? और बादशाह को मुझसे मिलने की क्या जरूरत पड़ गई? बादशाह ने जवाब दिया, मैं बादशाह बनकर नहीं बल्कि तुमसे दोस्त बनकर मिलने आया हूँ। अचानक वो भारी पत्थर हिलने लगा और गार का दरवाजा खुल गया। बादशाह अंदर दाखिल हुआ। उसने देखा कि गार के एक कोने में मुसल्ले पर एक बहुत बड़ा आदमी बैठा हुआ था। वो बोला, तुमने दोस्ती का हवाला दिया है बादशाह, इसीलिए मैंने तुम्हें अंदर बुलाया है, वरना तुम किसी सूरत यहाँ दाखिल नहीं हो सकते थे। यहाँ तख्त तो नहीं है, लेकिन तुम्हें इस जमीन पर ही बैठना होगा। बादशाह चुपचाप चटाई पर बैठ गया। बहराम, हम और तुम बचपन में किस तरह एक साथ खेलते रहे हैं। फिर जब मैं बादशाह बना तो मैंने तुम्हें अपना वजीर बना लिया और तुमने मुझे कितने अक्लमंदी वाले अच्छे मशूरे दिए। फिर अचानक तुम्हारा दिल इस दुनिया से अलग हो गया और तुम सारी दुनिया को छोड़कर दुनिया से अलग होकर इस गार में आकर बैठ गए और इबादत करने लगे। मैंने तुम्हारी कितनी मनते कि तुम वापस आ जाऊं, लेकिन तुमने मेरी एक न मानी। लेकिन आज फिर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी है। बादशाह ने कहा, क्या मतलब तुम चाहते हो कि मैं फिर से तुम्हारा वजीर बन जाऊं? इस दरवेश आदमी ने नहायत गुस्से भरे अंदाज में कहा, नहीं, मुझे यकीन है कि तुम ऐसा हरगिज नहीं करोगे। वजीर आजम तो दौर, तुम्हें अगर बादशाह भी बनाया जाए तो तुम फिर भी ऐसा काम नहीं करोगे। बादशाह ने कहा, फिर दरवेश बोला, तुमने ठीक कहा बादशाह कि जो सुकून अल्लाह ताली की याद में मिलता है वो बादशाह बनकर भी नहीं
मिलता अगर ऐसा नहीं है तो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझसे ज्यादा तो मेरी चांद। बेटी को तुम्हारी जरूरत है, बादशाह ने कहा। वो नहायत परेशानी में है। वो तो बहुत मासूम सी लड़की है, उसे क्या हुआ? बादशाह ने पहले शहजादी की फितरत के बारे में बताया और फिर अपने इस रात वाले ख्वाब और शाही नजोमी की उस ख्वाब की ताबीर के सारी तफसील से आगा। क्या मैं समझता हूँ तुम्हारी बात शाही नजूमी ने जो कुछ भी बताया है वो सब कुछ दरस्त है, लेकिन शहजादी तो मासूम और बेकसूर है, लेकिन उसे किस बात की सजा मिलेगी? जरा ठहरो, मैं अभी तुम्हें उसका कुछ हल बताता हूँ। दरवीश बहराम ने आंखें बंद कर ली और फिर कुछ पढ़ने लगा। जब चंद लम्हों बाद उसने आंखें खोली तो उसकी आंखें चमक से लहरा रही थीं। दरवीश बहराम ने कहा कि बादशाह, शहजादी की जान बचाने का एक ही तरीका है कि किसी तरह से उस सिंह वाले जादूगर का खात्मा कर दिया जाए। बादशाह ने कहा, मगर वो कैसे? उसे मारना तो नामुमकिन है, वो तो बादलों में रहता है और शाही नजूमी के मुताबिक जो भी उसे मारने की कोशिश करता है वो उसे जलाकर राख कर देता है। दरवीश बहराम ने कहा, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अब तुम ऐसा करो कि वापस अपने महल में चले जाओ। कल रात को वही जादूगर तुम्हारे महल की छत पर उतरेगा और फिर जोरदार आंधी चलेगी और शहजादी जो अपने बस्तर पर सोई होगी। बहराम दरवीश बोला, जब वो सर आंधी चलेगी तो उसी आंधी के जोर से मरियम खुद ब खुद अपने बस्तर से उठकर महल की छत पर पहुंच जाएगी। वहाँ काशाम जादूगर नमोदार होगा। वो मरियम को उठाकर शादी की बात करेगा, मगर मरियम साफ इनकार कर देगी। सिर्फ इनकार ही नहीं, मरियम को गुस्सा आ जाएगा। वो इस पर हमला करने की कोशिश करेगी। इसी लम्हे काशाम जादूगर उड़ता हुआ दोबारा बादलों में चला जाएगा। फिर मरियम वापस अपने कमरे में पहुंच जाएगी। सुबह जब आंख खुलेगी तो वो यही समझेगी कि ये सब एक बड़ा ख्वाब था। बहराम ने लम्हा भर रुक कर कहा, लेकिन अगले दिन बिल्कुल दोपहर के वक्त दो आदमी मरियम के कमरे में दाखिल होंगे। ये दोनों काशाम जादूगर के चीले होंगे। तुम पहले ही अपने 4 बहादुर सिपाही इसी कमरे में छिपा देना। एक चीला मरियम को पकड़ेगा और दूसरा खिंजर लेकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ेगा। तुम इस वक्त तक कोई मुदाखलत नहीं करना जब तक वो हमला करने को तैयार ना हो जाएं। जैसे ही वो वार करने लगें, तुम्हारे बहादुर एक बड़ा मजबूत जाल लेकर आगे बढ़ें और दोनों चीलों को जाल में कैद कर लें। इन्हें फौरन बाग के बड़े सितूनों में लटका देना। वो बेबस हो जाएंगे और ये सब काशाम जादूगर दौड़ से देख रहा होगा। बहराम की आवाज़ और गहरी हो गई। जब वो देखेगा कि उसके चीलों के साथ ऐसा हुआ है तो वो गुस्से में चीखता चलाता इसी बाग में उतर आएगा। इसी वक्त मरियम हाथ में नरगस का फूल लेकर उसके सामने आ जाए। नरगस के फूल की वजह से काशाम जादूगर न उस पर जादू कर सकेगा और न ही उसे कोई नुकसान पहुंचा सकेगा। मरियम को चाहिए कि किसी तरह नरगस का फूल उसके किसी एक सिंग पर मार दे। जैसे ही नरगस का फूल किसी एक सिंग से टकराएगा, वो सिंग चाट कर जमीन पर गिर जाएगा और काशाम जादूगर दोबारा बादलों में चला जाएगा, क्योंकि एक सिंग टूटने से उसका आधा जादू खत्म हो जाएगा। आधा जादू वापस पाने के लिए उसे बहुत ज्यादा इबादत करनी पड़ेगी। बहराम ने आहिस्ता से कहा, मगर चीलों की चीखें उसे दोबारा नीचे उतरने पर मजबूर कर देंगी। इस वक्त मरियम को चाहिए कि नरगस का दूसरा फूल उसके दूसरे सिंग पर मार दे। जैसे ही दूसरा सिंग भी टूटेगा, काशाम जादूगर का सारा जादू खत्म हो जाएगा। इसके बाद वो तलवार निकालकर मरियम पर हमला करेगा। अब मरियम को खुद इसका मुकाबला करना होगा। अगर मरियम जीत गई तो काशाम जादूगर हलाक हो जाएगा और उसी के साथ मरियम का दिमाग भी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर मरियम हार गई तो जादूगर के सींग दोबारा हवा में उड़कर उसके सिर पर लग जाएंगे और वह अपने चीलों के साथ हवा में उड़ता हुआ वहां से चला जाएगा। बस यही एक रास्ता है, उसके सिवा कोई और तरीका नहीं। बहराम ने सख्त लहजे में कहा, याद रखना मरियम किसी भी किस्म का लोहे का हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकती। बादशाह ने फिक्र से पूछा, अगर मरियम इस जादूगर का मुकाबला करने पर राजी ना हुई तो? वो तो अपनी मर्जी की मालिक है। बहराम बोला, तो ये तस्बीह ले जाओ, इसे जाकर सोती हुई मरियम के जिस्म से लगा देना। इससे मरियम के दिल में काशाम जादूगर के लिए ऐसी नफरत पैदा हो जाएगी कि वो खुद ब खुद इससे मुकाबला करने को तैयार हो जाएगी। ये कहकर बहराम ने अपने मुसल्ले के पास रखी हुई तस्बीह उठाकर बादशाह को दे दी। बादशाह तस्बीह लेकर घर से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद वो घोड़े पर सवार हुआ और तेजी से महल की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में वो सोचता रहा, काश में जवान होता तो खुद काशाम जादूगर का
सामना करता, मगर बुढ़ापे ने मुझे मजबूर कर दिया है। महल पहुंचकर उसने मालूम किया तो पता चला कि मरियम अपने ख्वाबगाह में सो रही है। बादशाह खामोशी से उसके कमरे में गया और सोती हुई मरियम के जिस्म के साथ दरवीश की दी हुई तस्बीह अच्छी तरह लगा दी। फिर वो आहिस्ता से अपनी ख्वाबगाह में वापस आ गया। आधी रात के करीब बादशाह ने खिड़की से बाहर तेज आंधी चलती देखी। वो फौरन समझ गया कि काशाम जादूगर शाही महल की छत पर उतर आया है। चूंकि दरवीश ने उसे छत पर जाने से मना किया था, इसलिए बादशाह अपने कमरे में ही बेचैनी से टहलने लगा। थोड़ी देर बाद आंधी अचानक रुक गई। बादशाह ने खिड़की से झांक कर देखा। उसे एक आदमी बड़े परिंदे की तरह उड़ता हुआ आसमान की तरफ जाता दिखाई दिया। वो बिजली की तरह चमक रहा था, इसलिए रात के अंधेरे में भी साफ नजर आ रहा था। अब बादशाह और ज्यादा परेशान हो गया। वो सोचने लगा, क्या मरियम वाकई इस जादूगर का मुकाबला कर पाएगी? अगले दिन बादशाह ने अपने 4 बहादुर सिपाहियों को बुलाया, साथ ही एक बड़ा और मजबूत जाल मंगवाया। इसने सिपाहियों को सारी बात अच्छी तरह समझाई और इन्हें मरियम के कमरे में बड़े पर्दों के पीछे छिपा दिया। वही कमरा जहां मरियम दोपहर के वक्त आराम करती थी। बादशाह खुद भी एक पर्दे के पीछे खड़ा हो गया। दोपहर से पहले मरियम कमरे में आई। वो बस्तर पर लेटी और सो गई। इन दोपहर के वक्त 2 आदमी खामोशी से कमरे में दाखिल हुए। बादशाह ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। यही काशाम जादूगर के चीले थे। इनकी शक्लें वो ख्वाब में पहले ही देख चुका था। एक चीला ख्वाबगाह का दरवाजा बंद कर देता है, दूसरा तेजी से मरियम के पास आता है। वो मरियम को उठाकर खड़ा करता है और जबरदस्ती उसे पकड़ लेता है। मरियम को अचानक नींद से जगाया गया था, इसलिए उसके चेहरे पर हैरत के तासरात थे। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसी दौरान बड़ी मूंछों वाला आदमी खंजर निकालता है। वो एक हाथ मरियम की तरफ बढ़ाता है और खंजर से वार करने ही वाला होता है कि अचानक 4 बहादुर सिपाही पर्दों के पीछे से निकल आते हैं। वो एक बड़े जाल में दोनों चेलों को जकड़ लेते हैं। जाल समेत इन्हें घसीटते हुए शाही बाग में ले जाया जाता है और फिर इन्हें इसी जाल के साथ बाग के एक बड़े कन्वे में लटका दिया जाता है। बादशाह भी पर्दे के पीछे से निकलकर सामने आ जाता है। मरियम ने बादशाह को देखकर पूछा, अबा हुजूर, ये कौन थे और ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे थे? बादशाह ने नरमी से कहा, ये इस सिंगों वाले जादूगर के चीले थे जो तुमसे शादी करना चाहता था। मरियम ने गुस्से से कहा, ओह, तो ये इसके चीले थे? फिर तो अच्छा हुआ कि सिपाही उन्हें ले गए। मुझे उस संगों वाले जादूगर से बहुत नफरत है। अब अगर वो मेरे सामने आया तो मैं इसके सींग तोड़ दूंगी। बादशाह ने फौरन कहा, वह अपने चीलों को छुड़ाने के लिए अभी बाग में आएगा। सुनो मरियम, अगर तुम उसे हलाक करना चाहती हो तो पहले किसी तरह उसका एक सींग तोड़ना होगा। जब तक उसका सींग नहीं टूटेगा वो मर नहीं सकता और उसका सींग सिर्फ एक तरीके से टूट सकता है, नरगस का फूल। उसके सींग पर मारो। मरियम ने खुश होकर कहा, अच्छा, फूल से उसका सींग टूट जाएगा? फिर तो मैं जरूर उसका सींग तोड़ दूंगी। ये कहकर मरियम कमरे से निकली और दौड़ती हुई शाही बाग की तरफ चली गई। मरियम ने नरगिस का एक फूल तोड़कर अपने हाथ में ले लिया। इसी लम्हे आसमान से एक जोरदार कड़ाके की आवाज आई और अगले ही लम्हे काशाम जादूगर आसमान से नीचे उतरा। वो गुस्से से चिल्ला रहा था, धाड़ रहा था, मैं तुम सबको जलाकर राख कर दूंगा। तुम लोगों ने मेरे चीलों को कैद किया है। इसकी आवाज पूरे बाग में गूंज रही थी, लेकिन मरियम ने एक लम्हा भी जाया नहीं किया। उसने नरगिस का फूल काशाम जादूगर के एक सींग पर दे मारा। अचानक एक और जोरदार कड़ाका हुआ और देखते ही देखते काशाम जादूगर का एक सींग टाट कर घास पर आ गिरा। वो चीखता चलाता हवा में बुलंद हुआ और पलक झपकते ही बादलों में गायब हो गया। मरियम ने खुश होकर कहा, अरे वाह, सिर्फ एक सींग टूटने पर ये डर कर भाग गया। मैं तो समझ रही थी दूसरा सींग भी तोड़ दूंगी। इधर बादशाह ने पहले ही इलाव का इंतजाम कर रखा था। जैसे ही काशाम जादूगर आसमान में गायब हुआ, बादशाह के हुक्म पर इलाव में आग लगा दी गई। सिपाहियों ने कन्वे में लटके जाल को खींचा जिसमें काशाम जादूगर के चेले कैद थे और इन्हें इसी जलती आग में डाल दिया गया। मरियम अभी नरगिस का वही फूल हाथ में थामे खड़ी थी कि अचानक दोबारा आसमान गरज उठा। इस बार काशाम जादूगर शदीद गुस्से में जमीन पर उतरा। उसके हाथ में एक तलवार थी। वो धाड़ कर बोला, तुमने
मेरा आधा जादू खत्म कर दिया और मेरे खास चीले हलाक कर दिए। अब मैं तुम सबको मार डालूंगा। वो बादशाह की तरफ लपका ही था कि मरियम ने नरगस का फूल उसके दूसरे सींग पर दे मारा। एक और कड़ाका और दूसरा सींग भी टाट कर जमीन पर गिर गया। अब काशाम जादूगर गुस्से से पागल हो चुका था। वो तलवार उठाकर मरियम की तरफ बढ़ा। तुम मुझ पर हाथ उठा रही हो? यह सुनकर मरियम का गुस्सा हद से बढ़ गया। उसने फौरन जमीन पर गिरा हुआ सींग उठाया और इससे पहले कि तलवार उस तक पहुंचती, मरियम ने वो सींग जोर से जादूगर की तरफ दे मारा। जादूगर लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गया और तलवार उसके हाथ से छूट गई। गुस्से में मरियम ने दूसरा टूटा हुआ सींग भी उठा लिया। जादूगर के दोनों सींग टूट चुके थे। उसका सारा जादू खत्म हो चुका था। वो अब एक आम इंसान था। मरियम का गुस्सा कम होने के बजाय और बढ़ता जा रहा था। आखिरकार जादूगर मरियम के आगे हाथ जोड़ने लगा। वो गड़गड़ा रहा था, माफिया मांग रहा था, मगर मरियम का गुस्सा उसकी आदत के मुताबिक तब तक नहीं थमा जब तक काशाम जादूगर बिल्कुल बेजान ना हो गया। उसके मरने के बाद मरियम एक तरफ घास पर बैठ गई। वो तेज तेज सांस ले रही थी। इसी लम्हे एक जोरदार कड़ाका हुआ। यूं लगा जैसे आसमान से रोशनी की आबशार इतर रही हो। रोशनी का एक धारा नीचे आया और मरियम इस रोशनी की जद में आ गई। उसने एक चीख मारी और बेहोश हो गई। अगले ही लम्हे काशाम जादूगर की लाश धुआं बनकर फदा में तहलील हो गई। बादशाह मरियम की चीख सुनकर दौड़ा। वो पहले खुश था, मगर अब उसे बेहोश देखकर घबरा गया। उसने मरियम को होश में लाने की बहुत कोशिश की। सारे हकीम बिला लिए गए, मगर कोई फायदा ना हुआ। आखिरकार बादशाह के जहन में एक ही नाम आया, बहराम दरवीश। बादशाह फौरन अपने घोड़े पर सवार हुआ और उसी पहाड़ की तरफ रवाना हो गया। जैसे ही वो पहाड़ के करीब पहुंचा, गार के अंदर से आवाज आई, आओ बादशाह, अंदर आ जाओ। गार का दहाना खुला हुआ था। बादशाह अंदर दाखिल हो गया। अंदर जाकर उसने देखा कि बहराम दरवीश वैसे ही मुसल्ले पर बैठा हुआ था। दरवीश मुस्कुराया और बोला, मुबारक हो बादशाह। मरियम ने निहायत बहादुरी से काम लिया है। क्योंकि उस जादूगर पर लोहे का कोई हथियार असर नहीं करता था, इसलिए सबसे बेहतर तरीका यही था कि उसके सींग तोड़े जाएं। वाकई मरियम ने बहुत हिम्मत, बहुत समझदारी और बहुत बहादुरी दिखाई है। बादशाह ने परेशान होकर कहा। लेकिन दरवीश बहराम जादूगर के मरते ही आसमान से एक रोशनी उतरी और मरियम पर पड़ी। तब से वो बेहोश है। सारे हकीम अपनी कोशिशें कर चुके हैं, मगर होश नहीं आया। बहराम दरवीश ने सर हिलाया। आवा, तो ये बात है, वो तस्बीह तुम्हारे पास ही होगी जो मैंने तुम्हें दी थी। बादशाह बोला, जी हाँ, वो तस्बीह मेरे पास महफूज है। दरवीश ने कहा, जाकर वो तस्बीह मरियम के गले में पहना देना। इससे वो फौरन होश में आ जाएगी, और ना सिर्फ होश में बल्कि बिल्कुल तंदुरुस्त भी हो जाएगी। इसके बाद तुम मरियम की शादी कर देना। बादशाह ने दरवीश से इजाजत ली और फौरन महल की तरफ रवाना हो गया। महल पहुंचते ही वो अपने खास कमरे में गया। अलमारी से वो तस्बीह निकाली और मरियम के गले में आहिस्ता से डाल दी। अगले ही लम्हे मरियम ने आंखें खोल दें। वो होश में आ चुकी थी और वाकई इसी लम्हे उसका सारा पागलपन हमेशा के लिए खत्म हो गया। इसके बाद मरियम ने अपनी राया की दिल से खिदमत की। उसने गरीबों का सहारा बनी, मजलूमों की आवाज़ बनी। राया उससे इतनी खुश हो गई कि सबने उसे अपनी मलका मान लिया। अब लोग उसे पागल मरियम नहीं बल्कि चांद मरियम कहने लगे। कुछ वक्त बाद बादशाह ने खुद तख्त उताज छोड़ दिया और मरियम मुल्क शाम की हुक्मरान बन गई। राया उसे आज भी चांद मरियम ही कहती थी और मरियम इस खिताब पर बहुत खुश थी। वो पहले से भी ज़्यादा राया की खिदमत करने लगी। इसका शहर, उसकी राया, सब नेकदल और एक दूसरे के हमदर्द बन गए। पूरे मुल्क में खुशहाली, अमन और सुकून फैल गया। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आज की ये सच्ची कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।